parliament, but we're now learning that the NDA's vice presidential candidate C.P. Radhakrishnan is expected to file his nomination for the post very shortly. Now ahead of this, he's paid tribute to Mahatma Gandhi at his statue at the Prerna Sthal at the Parliament House. BJP leaders and union ministers, in fact, including Kiran Rijiju, Arjun Ram Meghwal, Ram Mohan Naidu and Dharmendra Pradhan were also present during this. Manohar Kesri with us on the broadcast. Manohar, of course, also in sight is the battle for the VP's post. The NDA has fielded C.P. Radhakrishnan, a stalwart from Tamil Nadu. He's been associated with the RSS for a very long time. He's headed the BJP's Tamil Nadu unit also for years. He was an MP from Coimbatore elected in 1998 and 1999. A very senior leader, now of course governor of Maharashtra. He's been fielded as the BJP's and the NDA's vice presidential pick. He will be filing his nomination very shortly, but now we're learning he's paid floral tributes to the Mahatma Gandhi. देखिए बिल्कुल कुछ ही देर में सीपी राधाकृष्णन जो है सो नॉमिनेशन फाइल करेंगे और जहां तक नंबर गेम का सवाल है, नंबर गेम से पहले आज जब नॉमिनेशन फाइल करेंगे तो प्रस्तावक और समर्थक दोनों की जरूरत होती है। 20 प्रस्तावक और 20 समर्थक होते हैं। प्रस्तावक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, राजनाथ सिंह होंगे, तमाम जरूरत के अनुसार से जैसे कैबिनेट मिनिस्टर होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एनडीए के पास जो है तो पूर्ण बहुमत पहले से है, लेकिन एनडीए ये चाहता है, बीजेपी ये चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा सांसद उनके पक्ष में उनके कैंडिडेट को सपोर्ट करें, ताकि अगर कुछ अवैध वोट का स्थिति में एनडीए को फायदा हो। अब आप देखिए जो संख्या अभी कमोबेश है वो 782 लोकसभा और राज्यसभा में है, जिनमें से एनडीए के पास जो है 427 के आसपास जो है तो सांसद मौजूद हैं राज्यसभा और लोकसभा के। तो वहीं अगर हम इंडिया ब्लॉक की बात करें तो 340 के आसपास जो है तो उनके पास है। लेकिन जो 50 से 60 ऐसे सांसद हैं जिसमें निर्दलीय हैं, चाहे ओवैसी की पार्टी का हो, बीजेपी के सांसद हो या फिर वाईएसआरसीपी की बात हो या फिर हम बात करें अदर्स रीजनल पार्टियों की, आम आदमी पार्टी की बात हो, क्योंकि उनके भी लोकसभा और राज्यसभा में सांसदों की संख्या है। तो ऐसे में दोनों अलायंस जो है कि नजरें उन सांसदों पे, उन पार्टियों पे टिकी हुई है। बीजेपी की ओर से, एनडीए की ओर से राजनाथ सिंह को अधिकृत भी किया गया है कि वो बाकी पार्टियों से बात करें, जो सोर्सेज दिलाएं कि वाईएसआरसीपी जो जगन मोहन रेड्डी की पार्टी है वो हो सकता है सीपी राधाकृष्णन को सपोर्ट करें। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इसमें तेलुगु वर्सेस तमिल हो गया है। Indeed, you aptly put it right, Manohar. It's a numbers game. It's a very crucial numbers game. Currently, the numbers stack in the NDA's favor. But more news coming in. We're now learning that 4 nomination sets are being filed for C.P. Radhakrishnan. One set will be submitted with the signature of Prime Minister Narendra Modi. Second set with the signature of Union Minister Lalan Singh. The third set with the signature of BJP National President JP Nadda, and the fourth with the signatures of key NDA leaders, including those from the Telugu Desam party. We're learning that Prime Minister Modi will be present during the nomination. He's likely to be present. This is what our sources are telling us at this point, Manohar. Big news coming in. 4 sets of nominations with 4 sets of signatures, including PM Modi, Union Minister Lalan Singh, BJP National President JP Nadda and other NDA leaders, including those from the Telugu Desam party. PM Modi is likely to be present during the nomination filing as well, is what we are learning. Major news coming in from our sources. बिल्कुल, जैसा कि मैं बता रहा था कि प्रस्तावक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले हस्ताक्षर करने वाले हैं। और दूसरा अगर हम बात करें तो ललन सिंह जो जेडीयू से हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जेपी नड्डा टीडीपी से श्री कृष्ण देवयानी या राम मोहन नायडू रहेंगे। तो ये एक मैसेज है इंडिया ब्लॉक के लोगों के लिए कि एनडीए पूरी तरह से
निश्चित है कि उनकी जीत होने वाली है, बहुमत का आंकड़ा उनके पास है और सीपी राधाकृष्णन ही जो है सो उपराष्ट्रपति बनेंगे। लेकिन अभी भी एनडीए के जो अधिकृत मंत्री हैं या सांसद हैं राजनाथ सिंह, वो तमाम विपक्षी पार्टियों को अप्रोच कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनसे समर्थन की मांग कर रहे हैं कि वो सो उनके नेता जो है जिन पर जो कैंडिडेट है सीपी राधाकृष्णन, उन्हें समर्थन करें। उनके पास संगठन और सिस्टम दोनों का अनुभव है। राज्यपाल के रूप में सिस्टम का अनुभव है कि किस तरह से सदन को चलाया जाता है, किस तरह से सरकारी कामकाज किए जाते हैं। इसके अलावा संगठन का खासा अनुभव है और जैसा कि जेपी नड्डा ने भी कहा था कि उन्होंने जो काम किए, समाज के लिए उन्होंने जो काम किया, अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए जो रथ यात्रा उन्होंने निकाली, टीबी उन्मूलन के लिए उन्होंने जो काम किया, तो उनका काम जो है सो बोलता है और उनका जो अनुभव है वो अनुभव राज्यसभा चलाने में काम आएगा। इसीलिए बाकी जो क्षेत्रीय दल हैं जो ना इंडिया ब्लॉक में है ना एनडीए में है, उनसे समर्थन की मांग कर रहे हैं।